پر یقین نہیں رکھتی، میں خدا کی آگاہی پر یقین رکھتی ہوں۔ میں ایک کٹر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اور خدا کا میرے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز منصوبہ تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یسوع نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے نئی زندگی دی، اور اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ یقین کریں تو خدا آپ کو آج نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح حقیقت ہے، وہ زندگی بدل دیتا ہے، وہ قسمت بدل دیتا ہے، اور وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور وہ قومی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ ہیلو عزیز دوستو، میں عشق قابلہ ہوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ہونا میرے لیے باعث خوشی ہے۔ میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس کا ایک بہت اہم حصہ شیئر کرنے والی ہوں، خاص طور پر میرے لیے۔ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی بائبل مقدس ہے تو آپ مقدس یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 2 آیت دیکھیں۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت صدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑے دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لمحات آتے ہیں جن سے ہم کچھ حد تک بے بس اور ناتواں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس مشکل میں آرام اور تسلی پاتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ آپ اس وقت جس بھی طرح کے حالات میں ہو، آپ شاید تسلی پائیں۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بہت برے میں بھی۔ شاید جب آپ معذور بھی ہوں، یہاں تک کہ آپ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہیں، شاید آپ مجھے یہ کہہ رہے ہوں، کیا تم پاگل ہو؟ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، میں ہر ہفتے مختلف ٹیسٹ کے لیے جا رہی ہوں، کاش کہ یہ ختم ہو جائے۔ بہرحال انکار کرنے کے بعد، پہلی بری خبر سننے کے بعد، ہم مقبولیت کے ایک درجے پر آتے ہیں۔ شاید میں مرنے والی ہوں یا میری سرجری ہونے والی ہے، میری ازدواجی زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی یا قائم رہے گی، ہماری طلاق ہو جائے گی ہمیشہ۔ ایک لمحے کے بعد جب برے حالات یا ایک خبر ہمارے منہ پر ایک تھپڑ کی طرح ہوتی ہے اور ہم اس درد سے گزرتے ہیں، اور پھر ایک لمحے کے بعد ہم آرام محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ یہی بہتر ہے کہ میں ان حالات سے سمجھوتا کر لوں۔ میں ڈاکٹر سے ملنے پر سمجھوتا کر لوں گی، میں اس شادی شدہ زندگی سے بھی سمجھوتا کر لوں گی۔ ہمیشہ جھگڑے، ہمیشہ تڑپنا، ہمیشہ دروازوں کو زور سے مارنا۔ اس گھر میں بھی بالکل ایسا ہی تھا جہاں میں رہا کرتی تھی۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ میرے والد ایک ماہر معاشیات تھے، میری والدہ ایک گھر تعمیر کرنے والی تھی، اور ہمارے پاس سب کچھ تھا جو کہ ایک کامیاب ملک کے شخص کے پاس ہوتا ہے، لیکن امن، سکون، خوشی ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ہنسی مذاق بھی نہیں تھا۔ بہت سالوں کے بعد ایک دن میں بہت اونچی آواز کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں کھل کر ہنس رہی تھی، اور میں اس وقت امریکہ میں تھی۔ اور میں رکی اور میں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اس طرح ہنس رہی ہوں، کیونکہ میری تہذیب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت اونچا ہنسے تو یہ اچھا نشان نہیں ہوتا۔ عورت کے ساتھ اس بات کو لگا دیا گیا، تو جب کبھی میں ہنسنے لگتی میں اپنا منہ بند کر لیتی، لیکن ہم اندر ہی اندر بھی خوش نہیں ہو سکتی تھی، ہم اپنے دل میں بھی نہیں ہنس سکتی تھی کیونکہ ہمارے پاس خوشی نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے جھگڑوں کے ساتھ اس قدر عادی ہو چکی تھی، ایک دوسرے کو لان تان کرنا، دروازوں کو زور زور سے مارنا، اپنی ماں کو اداسی میں سے ہو کر گزرتے دیکھنا، کیونکہ میرے والد ایک غیر ایماندار شخص تھے اور وہ ایک دوسری عورت کے لیے کبھی بھی گھر چھوڑ سکتے تھے، اور میں اپنی ماں کو بیمار ہوتے دیکھ رہی تھی، دوائی کی طرف بڑھنا، اور پھر یہاں تک کہ بہت ساری دوائیاں لینا۔ کچھ دیر بعد یہاں تک کہ آپ ایک مصیبت میں رہ رہے ہیں، کچھ ہوا، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا تھا،
लेकिन हमें सुकून मिला क्योंकि हम उससे बेहतर कुछ नहीं जानते थे। ये वो था जो मैं उस तर्ज ज़िंदगी के बारे में जानती हूँ। मैं कुछ और बेहतर नहीं जानती हूँ। जब मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं अपने घर से उस वक्त भाग गई जब मैं एक नौउम्र नौजवान थी, बेहतर के लिए, बेहतरी की उम्मीद के साथ। लेकिन फिर से ये एक तर्ज ज़िंदगी बन गया, उससे भी बुरा। तो कभी आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मकाम पर आते हैं जहां आप ये कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मैंने इन हालात का बहुत सामना किया है। मैं बीमार और थक चुकी हूँ इस तरह के बीमार होने और थक जाने से, और मैं इन हालात के बारे में अब कुछ करना चाहती हूँ। आप जानते हैं क्या, आप इन्हीं हालात में रहते हैं जब तक आप उसी जगह पर रहते हैं। और बहुत से लोग, मैं बहुत लोगों को मिली जिन्हें मैं जानती हूँ, इस दुनिया में लाखों करोड़ों, वो सब भी ठीक इन्हीं हालात में फंसे हैं। और फिर इस शख्स के साथ कितने सालों तक, इसको देखिए, 38 साल, 38 बड़े साल ये आदमी मजदूर था। और वो यरूशलेम में ही कहीं था जहां जब बीमार लोग जाया करते थे उम्मीद के लिए, और वो हमेशा वापस आ जाता था, और वो हमेशा उम्मीद के बगैर होता था, और वो वहां था। और मैं ये नहीं कह रही कि वो आराम में था, लेकिन 38 सालों के बाद आप ये कह सकते हैं, क्या आप जानते हैं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं इस सच्चाई को बेहतर तौर पर कबूल करती हूँ कि यही मेरी मंजिल है। मेरे वालिदैन को अब तक साथ रहते हुए 45 साल हो चुके हैं, और हालात, उनका तर्ज ज़िंदगी आज भी वही है, बिल्कुल वही है। और मेरी माँ, जब मैं उन्हें देखती हूँ, वो उस सच्चाई को कबूल करती है कि कभी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खबर है, बिल्कुल उस आदमी की तरह जब यीशु मसीह आते हैं, जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जब आप अपने आराम और सुकून से बाहर आते हैं और फौरन चीज़ें बदलने लगती हैं। आपको सिर्फ यीशु मसीह से कहने की ज़रूरत है, यीशु, यीशु, जो आपके इन हालात को बदल सकते हैं। हाँ, मैं पुरसकून होना चाहती हूँ। यीशु मसीह उसे बहुत आम सवाल पूछ रहे थे, और शायद ये सुनने में अजीब लगे। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ और मैं हिल भी नहीं सकता, मुझे रेंगना पड़ता है। 38 साल से क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? क्या तुम ठीक होना चाहते हो? ये किस तरह का सवाल है? यकीनन मैं ठीक होना चाहता हूँ। यकीनन मैं अपनी मंजिल को बदलना चाहता हूँ। यकीनन मैं अपनी जिंदगी में एक मौजज़ा होते देखना चाहता हूँ। बहरहाल ये आपके लिए पहला मरहला होता है जहां आपको हाँ कहना होता है। लेकिन उस आदमी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने शिकायत शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता था, और अपने भार को, और अपने दिल के दर्द को जो वो पिछले कई सालों से लिए बैठा था। यहाँ तक कि उसने सवाल पर भी गौर नहीं किया, शायद क्या तुम ठीक होना चाहते हो? वो उनको बताना चाहता था कि ये कितना तकलीफ देह है, कैसा अजीब महसूस होता है जब कोई पीछे रह जाता है। और यीशु मसीह ने उससे कहा बहुत सादा अल्फाज में, उठ और अपनी चारपाई उठा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। कुछ साल पहले मैं एक आदमी से मिली जो मेरी जिंदगी पर गौर कर रहा था। वो मेरे काम की जगह थी, और वो शख्स मेरे साथ यीशु मसीह की बात कर रहा था। और उस वक्त मैं बहुत गमज़दा औरत थी, बहुत ही काबिल तर्स औरत, जो नहायत गुमशुदगी में थी और अंधेरे में रहती थी। मैं एक मुसलमान थी। मैं देख रही थी, मैं एक मसीही अदारे में काम करती थी और हर रोज़ मसीहों को देखती थी, बेहतर जिंदगियों के साथ नहीं, और कई बार ना ही ठीक रवैयों के साथ, यहाँ तक कि हर बार वो गिरते थे। मैं मसीहियों को फिर वापस आते देखती थी, खड़े होते, क्योंकि उनके पास उम्मीद थी। हर तरह के हालात में खुशी, मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में फंसे हुए भी। मैं उस शख्स को देख रही थी कि वो मेरे साथ यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, और मैं उसे बता रही थी मैं ये नहीं कर सकती। वो एक पैगंबर हैं। मेरे मज़हब में हम यीशु मसीह पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन हम उनको एक पैगंबर मानते हैं। और वो शख्स ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसके पास सब कुछ हो। वो खूबसूरत दिखाई दे रहा था, वो अच्छे कपड़ों में था, उसने अच्छी अदाकारी की। और मैं सोच रही थी कि उस शख्स के लिए मेरी ज़िंदगी के बारे में बात करना बहुत आसान है,
क्योंकि उसके पास सब कुछ है। और एक दिन जब वो बात कर रहे थे कि इशक, मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल हालात से गुजर रही हो। बहरहाल अगर तुम यीशु मसीह की जानिब आओ, अगर तुम अपने दिल में यीशु मसीह को कबूल करो, तो तुम्हारी जिंदगी फिर कभी ऐसी ना रहेगी। और फिर एक दिन उन्होंने हद कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी में थी और मैं मायूसी की हालत में थी। मैं उस वक्त खुदकुशी करने की हालत में थी। और मैंने उनसे कहा, आप नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं उन पर बहुत गुस्सा थी। मैंने कहा, आपके पास सब कुछ है, खुद को देखिए, आपने क्या पहना हुआ है? क्या आपने अपना अरमानी सूट नहीं पहना हुआ? आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरी जिंदगी को देखिए और फिर अपनी। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन अगर आप जानते हैं, मसीह में मुझे जानते हैं, तो मुझसे कभी बात नहीं करते। मैं एक बहुत गुनहगार औरत हूं, मैंने उनसे कहा। और उन्होंने कहा, इशिक, तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि मैं कौन था। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। जब यीशु ने मुझे ढूंढ लिया, जब यीशु ने मुझे तब्दील किया, कि उस वक्त मैं कैसा शख्स था, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया और कहा, तुम जानती हो कि मैं एक बेकारी था। और मैंने कहा, क्या? ये शख्स बहुत ही बड़ा झूठा इंसान लगता है या पागल है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक बेकारी की तरह का नहीं लग रहा था। आप सोच भी नहीं सकते, वो बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छे लिबास में, बातमीज और खुदा से प्यार करता था। और आज भी वो मेरे दोस्त हैं और अब भी वो मेरी ज़िंदगी में है और मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और उस गवाही के लिए जो उन्होंने मुझसे शेयर की। उन्होंने कहा, मैं एक भिखारी था, एक रास्ते में मैं एक भिखारी था, मैं नशा भी करता था। और उन्होंने कहा कि मैं कबाड़ खानों में सोया करता था, मैं कूड़ादानों के पास जाता, उन्हें खोलकर अपने लिए खाना तलाश किया करता था, मैं चोरी करता था, अपने चाकू के जरिए लोगों को डराया करता था ताकि उनसे पैसे छीन लूं और अपने लिए नशावर अशिया खरीदूं। और उन्होंने कहा, एक दिन मेरे पास जूते नहीं थे और मैं एक पैदल गुजरने वाले रास्ते के करीब बैठा हुआ था और और मैं लोगों से मांग रहा था और मेरा इरादा था कि मैं जाकर उन पैसों से और नशा खरीदूं। और मैंने एक आदमी को देखा, मैंने एक आदमी को एक खूबसूरत बिजनेस सूट में देखा, जैसा आज मैं हूँ इशिक, जिसके हाथों में एक ब्रीफ केस था और वो बहुत खास लग रहा था और चल रहा था। वो सड़क पार कर रहा था, वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, उसके पास बहुत खूबसूरत गाड़ी थी। और उस लम्हे मैंने खुद से कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस आदमी की तरह बन जाऊं, अहम, ऐसा शख्स जिसकी सब इज्जत करे। और फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, उसने कहा, ए बेवकूफ़ बेकारी, ए नशावर इंसान, तुम पागल हो, तुम ये सब किस तरह से सोच सकते हो? ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, इस तरह से मत सोचो। लेकिन उसने कहा, मैं खुद को उस आदमी के सूट में देखते हुए रोक नहीं सकता। ख्वाहिश कर रहा था कि मैं उस जैसा हो जाऊं, ऐसा साफ सुथरा, खास और इज्जतदार। और फिर एक और बात मेरे दिमाग में आई, क्या ये सब हमारे साथ नहीं है मेरे दोस्तों? हम कुछ चाहते हैं और फिर हमारे अंदर पूरा ईमान नहीं होता और शैतान हम पर हमला कर देता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। और वो हमारे अंदर ये बीज बोने की कोशिश करता है, एक तीर की तरह जो वो हमारी तरफ फेंकता है और हमें कहता है कि तुम्हारे लिए ठीक होना मुमकिन बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि तुम नशावर अशिया से पाक हो। मुमकिन नहीं कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी हो या तुम्हारा दिल तब्दील हो। ये है जो शैतान कहता है। और उस आदमी ने अपनी गवाही जारी रखी और उन्होंने कहा, मैंने उस आदमी को देखा और आखिरकार वो आदमी वहां से चला गया। और फिर मैंने चलना शुरू किया, मैंने चलना शुरू किया और मैं ऐसे था जैसे गुस्से में हूं। उन्होंने कहा, और ठीक उसी लम्हे मैंने कुछ देखा, एक छोटी किताब अपने पाँव में सड़क के किनारे, और मैंने उसे उठा लिया और मैंने उसे खोला। और पहली चीज़ जो मैंने देखी वो एक छोटी बाइबल थी। वहाँ हमेशा एक खादिम आया करता था जिसके हाथों में बेशुमार बाइबल मुकद्दस होती थी और मैं उसका मजाक बनाया करता था और मैं उस पर हंसा करता था। मैंने कहा, शायद वो उसे बाइबल दे रहा था और वो उससे गिर गई। और मैंने वो बाइबल खोली और उसमें ये खूबसूरत आयत थी, मत्ती रसूल की अंजील 19वां बाब 26 आयत।
ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। और उस वक्त वो ख्याल जो मैं सोच रहा था उस आदमी के बारे में जो खास दिखाई दिया, और मैं खुद से ये बात कर रहा था कि ये नामुमकिन है। और फिर ये वही आयत है जो मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ी। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदावंद के साथ तमाम काम मुमकिन है। उन्होंने कहा, मैं गुस्सा हो गया और बाइबल को फेंक दिया। मैं नहीं जानता कि मैंने बाइबल को क्यों फेंका, लेकिन मैंने बाइबल को दूर फेंक दिया और चलना शुरू कर दिया और चलता रहा। और मैं कोशिश कर रहा था कि उस आयत को रोकूं, लेकिन वो आयत फिर भी यही कह रही थी, खुदा के साथ तमाम काम मुमकिन है। खुदा के साथ तमाम काम मुमकिन है। यीशु मसीह के साथ तमाम काम मुमकिन है। उन्होंने कहा, मैंने चलना शुरू किया और फिर चलता रहा और खुदा का कलाम मेरे कानों में गूंज रहा था। और उन्होंने कहा कि फिर अचानक मुझ में कुछ हुआ, मेरे दिल में कुछ हुआ। और मैंने कहा, क्या हुआ अगर ये मुझे तब्दील कर दे। और मैंने वापस भागना शुरू किया। मैंने भागना शुरू किया और भागता रहा उस उम्मीद के साथ कि शायद मुझे बाइबल मिल जाए। और जब मैंने बाइबल को जमीन पर गिरा पाया तो मैंने उसे उठा लिया और उसे साफ किया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और पढ़ता रहा। उन्होंने कहा, जैसे जैसे मैं बाइबल को पढ़ता गया मेरे अंदर ईमान पैदा होने लगा और मैंने ईमान लाना शुरू किया। और बड़ा ईमान कि खुदा मेरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिर मैंने बाइबल को बंद किया। खुदावन, मैं नहीं जानता, मैंने कभी दुआ नहीं की। मैंने पहले कभी दुआ नहीं की और मैं नहीं जानता कि किस तरह से दुआ करूं। ये मैं हूं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? प्लीज मेरी जिंदगी को तब्दील कीजिए। खुदावंद, आइए और मेरी जिंदगी को तब्दील कर दीजिए। अगर ये कलाम सच्चा है, मुझे नामुमकिन चीज चाहिए, आइए और मुझे बदल दीजिए। उन्होंने कहा कि उस लम्हे कुछ हुआ। इश्क, मेरे दिल में कुछ हुआ, मेरे अंदर कुछ हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि यह कुदरत से भरपूर था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं एक नया इंसान हूं और मेरे अंदर कुछ है, एक आवाज। और उसने मुझसे कहा कि पहले उस चर्च में जाओ जो तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे। और मैंने चलना शुरू किया और पहले उस चर्च को ढूंढने लगा। और एक लम्हे के बाद मुझे एक चर्च दिखाई दिया और मैं गया। मैंने चर्च का दरवाज़ा खटखटाया और एक काम करने वाले ने चर्च का दरवाज़ा खोला। और मैंने उनसे कहा, जनाब, आपको ये सब सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यही है जो हुआ। मैं कोई खास शख्स नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, या मैं एक भिखारी था। और मैं एक नशा करने वाला भी हूँ। नहीं, मैं एक नशा करने वाला शख्स था। लेकिन कुछ हुआ जब मैंने बाइबल की उन तमाम आयात को पढ़ा। खुदा ने मुझे बदल दिया। मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ तदबीर दीजिए। कौन मेरी मदद कर सकता है? क्या मैं किसी खादम को मिल सकता हूँ, या पादरी साहब, या जो कोई इस चर्च का निगरान हो? और वो काम करने वाला शख्स खुदा का एक बहुत अच्छा आदमी था। वो उसे अंदर ले गया। उसने उसे जगह दी कि वो नहाए और वो सो जाए। और ये शख्स जो मुझसे अपनी गवाही शेयर कर रहा था, इसने उस काम करने वाले शख्स की मदद करना शुरू की और चर्च में काम करने लगा। और फिर उसने ऑफिस से मुतल्लिक तमाम काम सीखना शुरू कर दिया। ऑफिस का काम करता और फिर उसने स्कूल जाना शुरू किया और उसने तालीम हासिल करना शुरू की। स्कूल में उसने दिल लगा कर पढ़ा। खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील करना शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानती हो कि मुझे कितनी नौकरियों से निकाला गया जब मैंने सच में इस दुनिया में काम करना शुरू किया? बिजनेस की दुनिया में कितनी बार मुझे निकाला गया? मैंने कहा, मैं नहीं जानती। 3 या 4 दर्जन से ज़्यादा बार मैंने नौकरियां बदली, क्योंकि मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया था। मैं क़वायद और ज़वाबित नहीं जानता था। लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया, उसने मुझे तब्दील किया। इश्क, उस दिन, उस गवाही के बाद मुझे भी उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी और घर गई और मैंने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? शायद तुम उस शख्स की तरह ही हो
جس نے تم سے یہ گواہی شیئر کی ہو، یا شاید اس آدمی یا عورت کی طرح ہو جو یوحنا کی انجیل میں بیکار یا مفلوج اور تم اپنے حالات میں قید ہو۔ لیکن خدا یہ بات کہہ رہا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ ممکن نہیں، انسان کے ساتھ یہ ناممکن ہے، لیکن میرے ساتھ، خدا کے ساتھ، یہوہ کے ساتھ، اسرائیل کے بادشاہ یسوع مسیح جو الفا اور اومیگا، اول و آخر، زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی ہے، یہ سب ممکن ہے۔ مضبوط قلعے کے ساتھ جو طاقت بخشنے والا ہے، یہ ممکن ہے۔ انسان کے ساتھ رہتے شاید آپ کا کینسر ٹھیک نہ ہو، آپ کی رسولی شاید ختم نہ ہو، آپ کا بیٹا شاید نشہ آور اشیاء سے دور نہ ہو، لیکن خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے میرے عزیزو، خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ ابھی اس وقت ہم ایک شخص کے گھر میں رکے ہوئے ہیں جو وسطی ایشیا میں ہے، جو ایک قاتل تھا، جو بے حد غصے سے بھرپور اور بڑا خطرناک آدمی تھا اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ آج صبح ناشتے کے وقت وہ اپنی گواہی میری امی اور میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اس علاقے میں جہاں وہ رہتے تھے ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ جب وہ علاقے میں گھومتا پھرتا تھا تو لوگ اس سے دور دور رہتے تھے کیونکہ وہ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ اتنا خطرناک شخص تھا، اس نے خود بتایا۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کسی کو قتل کیا؟ اس نے کہا یقیناً، ہاں میں نے قتل کیا، اور وہ اپنے ملک میں جیل میں بھی رہا۔ وہ اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے گزرا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے بھی اچھی زندگی تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ خدا کی طرح تھا۔ وہ ایک مسلمان شخص تھا۔ اس نے کہا میں کسی بھی شخص کی جان آسانی سے لے سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس اس قسم کی طاقت تھی۔ لیکن پھر ایک دن وسطی ایشیا میں جب وہ جیل میں بند تھا، یسوع مسیح اس شخص کو ایک رات خواب میں ملے اور انہوں نے کہا آج اگر تم میری خدمت کرو، اگر تم اپنی زندگی مجھے دے دو، میں تمہاری زندگی تبدیل کر دوں گا، تم اس جیل سے نکال لیے جاؤ گے۔ اور اس کا دھیان اس پر لگ گیا۔ آج وہ شخص بدل چکا ہے، وہ ایک پاسٹر ہے، وہ ہجوموں میں ہزاروں کو یسوع مسیح کے پاس لے جا رہا ہے۔ لیکن اس دن اس نے یہ بات جانی کہ وہ اتنا طاقتور نہیں کہ اپنے حالات تبدیل کر سکے۔ شاید وہ اس جیل میں زیادہ آرام دہ ہو، لیکن یسوع مسیح اس کی زندگی میں آئے اور وہ شخص بدل گیا۔ آج شاید آپ بھی اپنی پرسکون زندگی میں ہوں۔ آپ شاید اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ آپ شاید دن میں 5 وقت دعا کرتے ہوں اور آپ بس اس کے عادی ہو چکے ہیں اور آپ کچھ نہیں جانتے۔ آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور سوچتے ہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اس کی کوئی طاقت نہیں، آپ کی زندگی میں اس کا کوئی پھل نہیں، بے حد مایوس، آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنے باس یاد ہیں جو مجھے دیکھ رہے تھے، جو میرے ساتھ گواہی شیئر کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا عشق تم ایک کھوئی ہوئی عورت ہو، شاید تم بھی کھوئی ہوئی ہو جیسے میں کھویا ہوا تھا۔ آج آپ اپنے پرسکون دائرہ کار میں ہیں، لیکن آج یسوع مسیح آپ سے پوچھ رہے ہیں، میں نہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ وہ دروازے پر ہے، وہ کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، وہ دل پر دستک دے رہے ہیں۔ آج آپ کے دل پر دستک دے رہے ہیں، وہ دستک دے رہے ہیں۔ کیا آپ وہ دروازہ کھولیں گے؟ کیا آپ انہیں اپنے دل میں آنے کی اجازت دیں گے اور ان سے کہیں گے میں اپنے اس پرسکون دائرہ کار میں اور زیادہ نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے اس پرسکون دائرہ کار سے باہر آنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں اپنے گھرانے میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں اپنے چرچ میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں روح کی آگ چاہتا ہوں، میں اس کو ایسے نہیں رہنے دینا چاہتا، میں اسے قبول نہیں کر رہا، میں زیادہ چاہتا ہوں، خداوند میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔
शायद आप एक मसीही हैं और आप एक नीम गरम मसीही हैं और आप थोड़े में खुश हैं और मसीही जिंदगी सिर्फ चर्च जाने तक महदूद है, हर इतवार के रोज आपके लिए। और आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, आपके खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने इस पुरसुकून दायराकार से बाहर निकलो, अपने चर्च में बहाली के लिए दुआ करो, अपनी कौम के लिए रूह की आग के लिए दुआ करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कौम के लिए तब्दीली लाऊंगा। कोई सदर ऐसा नहीं कर सकता, कोई सियासी एजेंडा ऐसा नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा कर सकता है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और वो आज भी वही है, कल भी और हमेशा। वो लातब्दील है, वो झूठ नहीं बोलता, वो आज भी ताकत से भरपूर है। और मेरे दोस्तों, आज वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? क्या आप ठीक होना चाहते हैं? और शायद आप ये कह रहे होंगे, ये किस तरह का सवाल है? यकीनन मैं ठीक होना चाहता हूं। तो फिर उठ जाइए, तो फिर उठ जाइए और चलिए, तो फिर अपना मुंह खोलिए और इस बात का इकरार कीजिए कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तो फिर अपने पुरसकून दायराकार से बाहर निकलिए, अपने दुनियावी कामों से और शहवत परस्ती से। शायद आप एक ईमानदार हो, लेकिन आप ऐसी बातें सुन रहे हो जो आपको नहीं सुननी चाहिए। आप ऐसी चीजें देख रहे होंगे जो आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह आप में रहता है। आप जो देखते हैं, रूह भी उसे आपके साथ देखती है। आप जो देखते और सुनते हैं, खुदावंद आपके साथ देखते और सुनते हैं। और खुदावंद आज आपको ये बता रहे हैं, अपने पुरसकून दायराकार से बाहर निकलो, तो फिर मैं नामुमकिन को मुमकिन करूँगा। इंसान के साथ ये मुमकिन नहीं, डॉक्टर्स के साथ ये मुमकिन नहीं है। खुदावंद के पास आए जो डॉक्टर है, मास्टर तबीब के पास आए, प्रोफेसरों के प्रोफेसर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, और आप कभी नहीं पछताएंगे। आज मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा खुद आप पर ज़ाती तौर पर अपना आप जाहिर करे और वो आपके करीब से करीब तर होता जाए। वो अपना नूर आप पर जाहिर करे और वो आपको पुरसकून दायराकार से निकाल कर आपको तब्दील करे। मेरे दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।